اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، شہر نشین پر تشریف فرما معزز مشائخین عظام، علماء کرام اور ہمارے وطن عزیز کے نمائندہ مسلم آرگنائزیشنز کے تمام ذمہ دار، میری عزت ماں اور بہنوں، محترم حاضرین اکرام، ہم اور آپ نے ماشاءاللہ بہترین بصیرت افروز خطابات کو سنا۔ میں صرف 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو مکمل کر لوں گا۔ بی جے پی نے ایک 16 پیجز کا ایک بکلیٹ نکالا ہے اور ایک 4 پیجز کا پامفلیٹ نکالا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اس بکلیٹ کا اور یہ 4 پیجز کا ہم پورا اچھی طریقے سے، حلال طریقے سے پوسٹ مارٹم کر سکیں۔ تو اس میں بی جے پی نے اس 16 پیج کے بکلیٹ میں لکھا ہے کہ 70% وقف کی جائیدادوں پر قبضہ ہو چکا ہے۔ تو ہم بھارت کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں، جب آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ 70% وقف کی جائیداد پر قبضہ ہو چکا ہے، تو آپ ان جائیدادوں پر جو لوگ قابض ہیں ان کو آپ مالک بنا رہے ہیں لمیٹیشن ایکٹ لگا کر۔ 70% اگر پراپرٹیز پر جو لوگ قابض ہیں، لمیٹیشن ایکٹ کے اپلیکیشن پر جو اپلائی ہو چکا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ کئی ریاستوں میں ان کو میوٹیشن کروا کے ان کو مالک بھی بنا دیا گیا ہوگا، تو یہ قانون نریندر مودی وقف کو بچانے کے لیے نہیں لائے ہیں، وقف کے قابض لینڈ گرابروں کو مالک بنانے کے لائے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے یہ کہا کہ پورے مسلم سماج کی تائید حاصل ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو آپ کے ساتھ میں میر جعفر، میر صادق نہیں ٹھہرے، آپ کے سامنے ابو جہل، ابو لہب، یزید کھڑے ہوئے ہیں اور وقت کے فرعون کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ۔ یہ میں اور محب اللہ صاحب، ہم لوگ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے رکن تھے۔ کشمیر سے میر وائز صاحب آئے اور کنیا کماری تک جتنے مسلم تنظیمیں ہیں، چاہے وہ جمعیت العلماء ہو، جماعت اسلامی ہو، اور بریلوی طبقے کے جمعیت المشائخ ہوں، اور جو شیعہ کے جتنے اوریجنل اور جنیون تنظیمیں ہیں، وہ سب اس بل کی مخالفت کیے۔ حتیٰ کہ بوری جماعت کے شیعوں نے بھی اس کی مخالفت کی۔ ہم پوچھنا چاہ رہے وزیر اعظم سے کہ آخر یہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کے اس کالے قانون کی تائید کر رہے ہیں؟ بھارت کے 18-19 کروڑ مسلمانوں نے اس قانون کو مسترد کیا ہے۔ وزیر اعظم، ہم اس قانون کو قبول نہیں کرنے والے ہیں۔ یہ کالا قانون ہے جو ہمارے آئین کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے۔ دوسرا، نریندر مودی نے اپنے اس بکلیٹ میں لکھا کہ مسلمانوں میں 31% غربت ہے۔ ہم وزیر اعظم سے یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ یہ غربت اس لیے ہے کیونکہ آپ کی ذہنیت میں فرقہ۔ نریندر مودی ماشاءاللہ اب سعودی عرب گئے ہیں، تو وہاں پر محمد بن سلمان سے یا حبیبی بول کے ملیں گے، اور دیکھ کر پہچانو۔ اب تیسرا یہ ہے کہ ایک بی جے پی میں بہت زیادہ انمول رتن ہے، مغل بادشاہ اکبر کے پاس بھی نہیں تھے ہوں گے، مودی کے پاس بہت سے انمول رتن ہے۔ کسی نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ مسلم دیش پہ وقف نہیں ہے۔ ہم اپنے وزیر اعظم سے بول رہے ہیں کہ جب آپ کا پلین سعودی ایئر سپیس میں آیا تو محمد بن سلمان کی ایئر فورس نے 15 استقبال کیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ محمد بن سلمان مدینہ شریف میں رسول اللہ مبارک کے آگے ایک بہت لکھا ہوا انگریزی میں وقف عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
गले मिलते वक्त पूछ ले, क्योंकि बोर्ड लिखा हुआ है। तो हर इस्लामी मुल्क में, मुस्लिम मुल्क में, चाहे वहां पर जमहूरियत हो या बादशाहत हो, वफ़ का तसव्वुर है और रहेगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि गुर्बत के ताल्लुक से नरेंद्र मोदी ने मुसलमान अक़लियतों के प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की स्कीम को 9वीं और 10वीं जमात तक महदूद कर दिया। पोस्ट मैट्रिक मेरिट कम मीन्स का जो यूनिट कॉस्ट, एक अक़लियती बच्चा अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है तो माहाना उसको 180 या 200 रुपए मिलते, 2000। फिर इनका ये बोलना कि मैं बुकलेट का पेज नंबर 7 बोल रहा हूं मीडिया के लिए, उसमें उन्होंने लिखा कि सेक्शन 40 को हमने उड़ा दिया। मेंबर थे विजा ने जवाब, सेक्शन 40 का इस्तेमाल 30 साल में 530 मरतबा के करीब हुआ है, जिसमें से तो ये सेक्शन एक तस्वुर खड़ा वक्फ हो जाती है सेक्शन लिखकर, ये इनका दूसरा झूठ। तीसरा पर उन्होंने लिखा कि खवातीन के बारे में कि हम खवातीन को मेंबर, झूठ बोल रहे हैं, उनकी सरकार झूठी है। 95 कम 2, अब इन्होंने सिर्फ 2 कर दिया, और ये बाजा को मेंबर बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अगर आप में वाकई में बीजेपी में मुस्लिम खवातीन से मोहब्बत है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बिल्कुल बानो को अपने घर में बुलाकर अपने हाथ से मोहब्बत है, साल से जेल में सड़ रही है तुम्हारी, तो ये कहते हैं कि सफे नंबर 11 पर दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज का जिक्र करते हैं उनके इस बुकलेट में। सच्चर कमेटी ने कहा कि 123 प्रॉपर्टीज दिल्ली के जो है उसकी 2008 में लागत 7,000 करोड़ रुपए सच्चर कमेटी ने कहा, और ये वक्फ की वक्फ बोर्ड को। फिर ये कहते हैं कि हमने सच्चर कमेटी में फुला लिखा है। सच्चर कमेटी ने लिखा कि जो काबिज है उनको हटाने के लिए प्रीमाइसेस ऑफ एविक्शन एक्ट नहीं करते। फिर उसके बाद ये एग्जाम हो गया, कर्नाटका में 2, चेन्नई में 1, पूना में 1, लखनऊ में 1, अहमदाबाद में 1, मीरठ में 1, आसाम में 1, कलकत्ता में 1, यानी 14 लाख एकड़ प्रॉपर्टीज जो वक्फ बोर्ड की है। इन लोगों को इतनी तौफीक हुई कि सिर्फ 9 मिसाल दे सकते हैं आप, और जो अवामी दुश्मन थे ये दे रहे। चेन्नई बैठे, चेन्नई में जब हम गए थे वहां के गांव के लोग आकर कमेटी को बोले कि हमारा कोई मसला, मुहिबुल्लाह साहब बोले हमारे सामने आकर, अब यहां पर उसका जिक्र करते हैं। अच्छा, फिर एक गुजरात के एक मुकाम का जिक्र कर रहे हैं, वो एक जजीरा है, वो जजीरे के ऊपर एक किसी औलिया अल्लाह की मजार है, खबर है, और वहां के मछेरे समंदर में जाने से पहले उनका एक रिवाज है, वो एक बकरा काट के जाते थे। हुआ ये कि जब मुंबई में हमला हुआ तो अजमल कसब जो पाकिस्तान से जालिम किए वो उस जजीरे पर रुक गए, तो जब छीन लेंगे, अरे उसका वो दहशतगर्द, तो उसकी मिसाल आप दे रहे हैं। फिर आप जाइए कि ये कानून में, फिर नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि इस कानून में क्या है कि अब कोई हिंदू जमीन नहीं दे सकता। अभी चले गए हमारे पंजाब के सिख भाई, संगरूर एक गांव है जहां पर हिंदू धर्म के मानने वालों ने, उनके गांव में कोई मस्जिद नहीं थी तो उन्हें जमीन दी मस्जिद बनाने की। वहीं पर बेंगलुरु में HM बादशाह नामी एक शख्स ने, सुनिए, HM बादशाह नामी शख्स ने मंदिर की मरम्मत के लिए
मोदी जी को लेना चाहिए। आपने ये कह दिया इस बुकलेट में, पैम्फलेट में, झूठ का पलिंदा बोल रहे हैं ना मुसलमानों के लिए। अच्छा, क्या नुमाइंदगी दी उन सब लोगों को वक्फ बोर्ड में? तो बोलते हैं कि जो जो छोटे छोटे तबके उनको सबको मिलना चाहिए। आप बताओ आईबी में कितने मुसलमान है? एक मोहतरमा खाली आईबी में, एक साथ रखो ना आप। अब बोलेंगे देखो ओवैसी देश की सिक्योरिटी के बारे में सियासत कर रहा है। तुम मेरी मस्जिद किसके नाम पे सियासत करोगे? तुम मेरी ईमान नहीं कर... तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर ये 5 साल का लुजूम, ये 5 साल का लुजूम हम वजीर आजम से पूछना चाहते हैं। ये 5 साल का लुजूम सिर्फ इस्लाम कबूल कर... कल अगर आप भी वफ सिंह है या गलत कबूल किया, उसको पूछा जाएगा, जनाब आप प्रैक्टिसिंग है, क्या करेंगे आप? हम भारत के वजीर आजम से पूछते हैं कि माशाल्लाह आप अपने मजहब के मुताबिक अपने धर्म, मगर क्या तो किस बुनियाद नहीं जा कन्वर्ट हो या ना हो, उसमें कोई कोई गलती रहेगी तो आप वो भी निकाल लेंगे। तो जितना ये कानून बनाया गया है, ये सिर्फ वक्फ की जायदादों को बर्बाद। शामबी में मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 18 प्रॉपर्टी के नाम पर रजिस्टर कर ली गई, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के नाम पर रजिस्टर कर ली गई। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार और मां और बहनों, ऑल इंडिया ये जो प्रोग्राम पूरे मुल्क में आप इसका साथ दीजिए। और ये जो अबू लहब, अबू जहल और हमारे जितने ये जोकर हैं, अब इस अली किसी को मुतवली नहीं बना सकते। ये जो लोग मोदी की कह रहा हूं, हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में किसी एक शख्स को वहां का मुर्शिद बनाया गया। अगर मैं उर्दू में मुर्शद बोलूं तो उसका उनको जब बनाया गया तो मुझे भी इनविटेशन भिजा दिए कि नहीं मालूम क्यों भिजाए मुझे। तो क्या आप भी गए थे शायद दावत में उनके पास? उनकी जो बन गए गद्दी नशीन जो बन गए उन्होंने, खैर वाला। और कूफी कौन है? मुझे सूफीज्म के बारे में जुनैद बगदादी ने कहा वही सूफी हो सकता है जो दुनिया में मर गया और अल्लाह क्या कर रहे हैं ये मोदी के लिए जिंदा है क्योंकि उनके पप्पा हैं वो। तो वहां पर ये जानशीन बना दिया तो अगर ना सकते। तो ये लोग एक तमाशा कर रहे हैं और जितने टीवी चैनल पर इन तमाम जोकरों को लाके बिठा रहे, ये तमाम के तमाम एक सेक्शन वक्फ बोर्ड की 70% जमीन पर बताओ हमको, आप कोई नहीं बता सकते। आरएसएस के जा रहा है ये और इस मुल्क के सेकुलरिज्म को, इस मुल्क की के ईमान पर, उनकी मजहबी इबादत गाह साहब को फोन करके बताया हूं कि सेक्शन 3D प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट चले जाएंगे। दिल्ली के 180 एएसआई के मॉन्यूमेंट से वक्फ की ज्यादा हमारे हाथ से निकल गई। तो ये लड़ाई लड़ना है आज से 100 साल के बाद 2025 में हमारी बहनें उठ खड़ी हुई थी जिन्होंने जिस जगह
کا پیچھے ہم لڑتے، قانونی کاروائی چل رہی ہے، مگر جو سیکشن پراپرٹی روز اس کو کھو رہے. میں شکر گزار الحمدللہ حیدرآباد میں کامیاب احتجاج کیا. ہم امید کرتے ہیں کہ دیش کے کونے کونے میں ہزار ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب آنا ہے، قانون کو شکست دے. وآخر